we will discuss nomenclature of organic compounds. So nomenclature is actually assigning proper name to an organic compound based on standard rules. Why we assign a proper name to an organic compound? Just to make the study of the organic compounds easy and convenient. So a system has been developed for assigning names to these organic compounds. The system is known as IUPAC system of nomenclature, that is International Union of Pure and Applied Chemistry. So in this system, names of organic compounds are correlated with the structure of the organic compound, so that a listener or reader can deduce the structure from the name of the organic compound. Before this IUPAC system, इस सिस्टम से पहले we had a system that is known as common system or traditional system or trivial system. So in this system, the name of the compound was derived from its origin, and in some cases it was based on some properties of the compound. For example, if we have citric acid, this acid is present in citrus fruit, so its name was derived from these Sorus citrus fruits. So its name was citric acid. Exactly, formic acid. Formic acid इसका सोर्स था रेड ant. So formic acid from formica means red ant. In the same way, we have some more compounds. We have CH3COOH. The common name is acetic acid. We have CH3COCH3. Common name is acetone. We have CHCl3. The common name is chloroform, etc. So in IUPAC system, IUPAC name is derived simply IUPAC name of an organic compound is derived by identifying the parent hydrocarbon and the functional group attached to it. For example, if we write here CH3, CH2, CH, CH3, CH2, CH2, this is Br. So this is an organic compound. अगर हमें इसका लिखना होगा IUPAC नेम, सबसे पहले इसका नाम इसका जो नाम है ऑर्गेनिक, इस IUPAC नेम हम डिराइव करते हैं. सबसे पहले वो आइडेंटिफाई दिस पेरेंट ऑर्गेनिक, ये पेरेंट हाइड्रोकार्बन, ये कौन सा पेरेंट है, इसको हम पहले यानी पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको हम करते हैं पहले आइडेंटिफाई. देन वी identify it as the functional group attached to this hydrocarbon. सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं पेरेंट हाइड्रोकार्बन कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप जो उसको अटैच है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, और ब्रांच अगर कोई इसके साथ अटैच है, किसी कार्बन के साथ अटैच है ब्रांच, कोई साइड चेन में कोई ब्रांच है, साइड चेन है कोई, तो उसको आइडेंटिफाई करते हैं. सबसे पहले हम लिखेंगे, सो यहाँ पर ये अगर हम लिखेंगे दिस वन, so it has 1 2 3 4 5, these 5 carbon, the chain contains 5 carbons. That means this is the parent hydrocarbon.
ये पेरेंट हाइड्रोकार्बन है, पेरेंट हाइड्रोकार्बन। सो व्हाट इज दिस? ये जो ब्रोमीन है जिसको मैंने इंसर्ट कर दिया है, दिस इज ए फंक्शनल ग्रुप। यू नो दैट फंक्शनल ग्रुप determines the chemical properties of a particular organic compound. This is functional group, ये functional group है। So what is this methyl? यहाँ पर ये जो है ना इस कार्बन अटैच, ये मिथाइल, this CH3, this is actually branch, ये branch है। Any IUPAC name of a particular organic compound is derived by identifying the parent hydrocarbon and the functional group attached to it। फिर हम इस नाम को, इस पेरेंट हाइड्रोकार्बन या इस नाम को हम मॉडिफाई कर सकते हैं बाय एडिंग प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस। यानी फिर हम कर सकते हैं, इस नाम को हम मॉडिफाई कर सकते हैं बाय एडिंग प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। यानी प्रीफिक्सेस हम ऐड कर सकते हैं और सफिक्सेस हम ऐड कर सकते हैं। उससे इस हाइड्रोकार्बन का जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन का उसका नाम उससे मॉडिफाई होता है। आपको पता है हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, वी हैव हाइड्रोकार्बन, a type of hydrocarbon that is called saturated hydrocarbon, saturated hydrocarbon। Hydrocarbon, you know, hydrocarbons are actually organic compounds which contains only carbon and hydrogen। So we have saturated hydrocarbons. In these saturated hydrocarbons, we have single bonds between carbon and carbon। यानी कार्बन और कार्बन के जो बॉन्ड्स हैं वो दे आर ऑल सिंगल बॉन्ड्स, ये सिंगल बॉन्ड्स है यहाँ पर। सो अब किसी भी हाइड्रोकार्बन में अगर सिर्फ होंगे कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट, तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उनका जो आईयूपीएसी नेम है इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, दैट इज अल्केन्स। यानी इनका जो आईयूपीएसी दैट इज अल्केन, इनका हम अल्केन देते हैं, अल्केन उनका ये है आईयूपीएसी नेम। अर्लियर इनका जो नाम था दैट वाज पैराफिन। पहले हम जो कॉमन नेम था इनका पैराफिनस, ये पैराफिनस था इनका अर्लियर नेम। इट वाज अ कॉमन ट्रेडिशनल नेम। इसका मतलब था लिटिल एफिनिटी, लिटिल एफिनिटी था इसका नाम। लिटिल एफिनिटी मींस एक्चुअली दे वर शोइंग लेस रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का जो आईयूपीएसी नेम है दैट इज अल्केन्स। अब जो हमारे पास और एक चीज हमारे पास एक और किस्म हाइड्रोकार्बन होता है, उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उनमें एटलीस्ट होती है एक सिंगल, एक डबल और या एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड होती है बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। अब जो अल्केन्स का जो उसकी फिर दो किस्म होते हैं अल्केन्स की। हमारे पास जो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है सैचुरेटेड, वी हैव सिट्रेट चेन। हमारे पास सिट्रेट चेन है, सिट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स, एंड दूसरा हमारे पास है ब्रांचेड चेन हाइड्रोकार्बन। सो सिट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन का जो नाम होता है दैट इज बेस्ड ऑन, इसका नाम दैट इज बेस्ड ऑन चेन स्ट्रक्चर। इनका जो नाम होता है सिट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन का, उसका नाम जो आईयूपीएसी नेम होता है दैट इज बेस्ड ऑन चेन स्ट्रक्चर। उसको हम डिराइव भी हमने बोला, उसको हम डिराइव करते हैं, उसको हम डिराइव करते हैं, हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं पेरेंट हाइड्रोकार्बन। सो इसका जो नाम होता है सिट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन दैट इज बेस्ड ऑन चेन स्ट्रक्चर एंड इट एंड विद एन सफिक्स। ये एंड होता है विद सफिक्स एन, ऐसे ANE से होता है एंड। यानी हम उसको पेरेंट हाइड्रोकार्बन को हम करते हैं, पेरेंट जो होता है उसको हम एंड करते हैं, सुफिक्स करते हैं। चेन स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका चेन स्ट्रक्चर वो बनता है वर्ड रूट, फिर उसको हम करते हैं एड सुफिक्स, एन करते हैं सुफिक्स, तो वो पूरा नाम बनता है, वो पूरा आईयूपीएसी नेम बनता है। यानी वर्ड रूट जो चेन स्ट्रक्चर होता है वो बनता है वर्ड रूट, यानी उसमें नंबर ऑफ कार्बन जो होते हैं, यानी वर्ड रूट बनता है अपन नंबर ऑफ कार्बन। चेन स्ट्रक्चर में हम गिनते हैं नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन। फॉर एग्जांपल
the word root is based on the number of carbons. यानी parent chain में कितने number of carbons हैं, except from methane to butane. यहाँ पर चेन स्ट्रक्चर जो होता है, इसका जो वर्ड रूट दैट इज नॉट बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन्स, इनका जो वर्ड रूट है दैट इज नॉट बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन्स. इनका जो वर्ड रूट है फ्रॉम मीथेन टू ब्यूटेन, वो हम निकालते हैं फ्रॉम दियर, डिराइव करते हैं फ्रॉम दियर कॉमन नेम्स. यानी इनका जो ये क्या मीथेन या ब्यूटेन, इनका जो वर्ड रूट है दैट इज नॉट बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, बल्कि इनका जो ये नाम है, इनको हम डिराइव करते हैं फ्रॉम ट्राइबल नेम्स, कॉमन नेम्स हम करते हैं. उसके बाद आता है पेंटेन वगैरह, उनका जो चेन, उनका जो वर्ड रूट है दैट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कार्बन चेन. So if I write here some examples, I write here this is CH4. So इसका है word root myth, and करेंगे add, ये बनेगा मीथेन. इसी तरह we have CH3, CH2, CH2, CH3. इसमें 4 कार्बन हैं. So it is ब्यूट. इसका वर्ड रूट हम निकालते हैं ब्यूटेन, ब्यूट. फिर हम करते हैं एड एन, सुफिक्स, ये बनता है ब्यूटेन. क्योंकि सारे बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन कार्बन वो सिंगल बॉन्ड्स हैं. एग्जैक्टली वी राइट हियर CH3, CH2, 8 CH3. इसमें 10 कार्बन हैं. सो दिस इज डिकैन, ये डिकैन है. दिस डिकैन, डेक मीन्स इसमें 10 नंबर ऑफ कार्बन है. सो एन हो गया, ये अल्केन है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. सो इसका हो गया डिकैन. एग्जैक्टली वी हैव some compounds. We have C20, H42. So this is isocan. Isocan है ये. This isocan. Sorry, icosan है. Sorry, icosan. Icosan है. This icosan. I write here some small these which contains little number of small number of carbons, CH3, CH2, 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 CH3. So इसमें 5 कार्बन है. 5 कार्बन का मतलब है इसका जो वर्ड रूट है दैट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन इन द चेन. सो इसमें 5 कार्बन है. हो गया पेंटेन. पेंट हो गया 5, ये बन गया वर्ड रूट, ये बन गई सुफिक्स एन, हो गया पेंटेन. एग्जैक्टली आप बहुत सारे कंपाउंड्स को लिख सकते हो. अब जो इन कंपाउंड्स में कभी कभी होते हैं, हम क्या देखते हैं, हमारे पास जो कंपाउंड्स देखते हैं उनमें साइड चेन होती है लाइक दिस, CH3, CH2, CH, CH2, CH3. यहाँ पर एक साइड चेन है. साइड चेन या इसका एक यहाँ पर एक अटैच है, एक ब्रांच एक अटैच है. यानी स्मॉल ये ब्रांच होते हैं स्मॉल अल्काइल ग्रुप्स. ये स्मॉल अल्काइल ग्रुप्स होंगे ब्रांचेस. ये हम निकाल सकते हैं, ये अल्केन से हम निकाल सकते हैं. अल्केन से, इनका नाम अल्केन से निकाल सकते हैं इन ब्रांचेस का. सिंपली ये एन जो है इसको हम रिप्लेस करते हैं YL से. यानी एन को रिप्लेस व्हाइल नेमिंग दीज ब्रांचेस, उनका हम नाम करते हैं डिराइव फ्रॉम अल्केन बाय रिप्लेसिंग एन फ्रॉम दिस अल्केन बाय YL. उसको YL से करते हैं रिप्लेस. फिर बनता है अल्केन, बनता है अल्काइल. अल्केन बनेगा अल्काइल. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये इसमें एक कार्बन मीथेन से निकाला है, सो इट विल बिकम मिथाइल. इसी तरह अगर C2H5 का ये इथाइल है, इथेन है, ये 2 कार्बन है इसमें, इथेन, सो इट इज इथाइल. इसी तरह अगर होगा
C3H7, ये असली ये प्रोपेन से निकाला है, सो इट विल बिकम प्रोपाइल, ये प्रोपाइल बनेगा। इस तरह इनका हम नाम लिख सकते हैं। फिर इस ब्रांच का नाम, उसका उसका जो इसका नाम जो है, इसको हम IUPAC नेम में हम करते हैं, वी एड द नेम ऑफ दिस अल्काइल ग्रुप एज अ प्रीफिक्स बिफोर द नेम ऑफ द पेरेंट हाइड्रोकार्बन, लाइक दिस। अगर हम इसका लिखेंगे नाम, यानी वी एड द नेम ऑफ दिस अल्काइल ग्रुप एज अ प्रीफिक्स। यहां पर आप देखिए 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन है, और 5 कार्बन में 1 2 3, कार्बन नंबर 3 पे, कार्बन नंबर 3 पे यहाँ पर है मिथाइल। सो इस कार्बन का सीरियल नंबर जो है, इसको लोकेट बोलते हैं, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3, यानी उस कार्बन का सीरियल नंबर हमें यहाँ पर लिखना है। सो 3, कार्बन नंबर 3 को अटैच है, सो 3 मिथाइल। फिर तो नाम ये पता है हमें, इसमें 5 कार्बन हो गए, पेंट। फिर ये अल्केन है, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सो दिस इज पेंटेन। सो 3 मिथाइल पेंटेन इसका नाम है। अब ये अल्काइल ग्रुप जो है ना, इसको हम एक्चुअली इसको हम एब्रिवेट भी, हम कुछ अल्काइल ग्रुप्स का हम एब्रिवेशन में लिखते हैं, इसे भी कभी, यानी उनको हम एब्रिवेट फॉर्मेट में लिखते हैं किसी कंपाउंड में। मसलन एब्रिवेशन फॉर दिस हम लिखते हैं, अगर मीथाइल होगा कभी कंपाउंड में लिखा है, इसका एब्रिवेशन लिखते हैं Me, हो गया मिथाइल। इसी तरह अगर इथाइल होगा, यानी कभी हम समटाइम्स वी यूज एब्रिवेशंस while writing while assigning IUPAC names, so this is ET हम लिखते हैं, इसका E small t हो गया इथाइल। इसी तरह हम लिखते हैं प्रोपाइल का कभी PR। इस तरह ब्यूटाइल का लिखते हैं ब्यूटाइल, हम लिखते हैं उसका अब्रिवेशन हम लिखते हैं BU। sometimes we use abbreviations while assigning IUPAC names। इसी तरह जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, अल्काइल ग्रुप्स कैन बी ब्रांच्ड आल्सो, उनका भी ब्रांच हो सकता है, यानी अल्काइल ग्रुप्स जो होंगे ना, उनका भी कभी कभी ब्रांच हो सकता है। मसलन हमारे पास प्रोपाइल है, प्रोपाइल, या हमारे एंड ब्यूटाइल ग्रुप्स, अगर ये होंगे ब्यूटाइल ग्रुप्स होंगे अटैच, उनका कैन हैव ब्रांचेड, मतलब इनका हो सकता है ब्रांचेड स्ट्रक्चर्स, इनका भी ब्रांचेड स्ट्रक्चर हो सकता है। सो आई राइट हियर, इफ आई राइट this is CH3, this is इसको पढ़ते हैं आइसोप्रोपाइल, ये ब्रांचेड है, यहाँ से ये लिंक कर सकता है। सो दिस इज आइसोप्रोपाइल, ये आइसोप्रोपाइल है। एग्जैक्टली वी हैव CH3, CH2, CH, दिस इज CH3, दिस इज, इसको हम पढ़ सकते हैं ये 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन हैं। सो ये ब्यूटाइल है, बट इट इज, अगर हम देखेंगे ये कार्बन जो है ना, यहाँ पर दिस कार्बन अटैच्ड टू, एक साइड इस कार्बन को मिथाइल है, दूसरी साइड इसको इथाइल ग्रुप है। सो इट इज अ सेकेंडरी कार्बन, सो दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल पढ़ते हैं इसको, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये सेकेंडरी, यानी सेकेंडरी कार्बन से अटैच्ड है टू द मैन चेन, जो पेरेंट चेन होगी उसको अटैच होगा ये। इसी तरह अगर हम ऐसे लिख सकते हैं, we can write like this CH3, CH2, CH2 like this। ये भी, इसमें भी सॉरी, इसमें भी कैसे लिखेंगे हम, CH, this is CH3, this is CH like this, ये यहाँ से अटैच होगा। सो दिस इज आइसोब्यूटाइल पढ़ते हैं इसको, ये आइसोब्यूटाइल है। इसमें और इसमें आप फर्क देखिए, यहाँ पर ये अटैच कर सकता है, यहाँ पर ये प्राइमरी कार्बन है, सो प्राइमरी कार्बन विल गेट अटैच्ड, यहाँ पर ये सेकेंडरी कार्बन विल गेट अटैच्ड टू द मैन चेन। सो दिस इज, इसको हम पढ़ सकते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल, इसको पढ़ सकते हैं आइसोब्यूटाइल, इसको पढ़ेंगे आइसोब्यूटाइल। एग्जैक्टली हम लिख सकते हैं एक और, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
CH3 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 like this. So यहाँ से ये अटैच होगा. This is tertiary carbon. So this is tertiary butyl पढ़ते हैं इसको. Tertiary butyl. ये tertiary butyl है. Similarly अगर हमारे पास होगा CH2 ऐसे, इसको हम पढ़ते हैं इस वाले ग्रुप को. इसमें 5 कार्बन है. दिस कॉल्ड नियोपेंटाइड. अब यहां से इस जो ये मामला है इसका ये मतलब है जो ब्रांचेस होते हैं, ब्रांचेस दे कैन आल्सो, जो साइड चेन में होते हैं, साइड चेन में जो होते हैं अल्काइल ग्रुप जो होते हैं, दे कैन आल्सो बी ब्रांचेड, वो भी ब्रांचेड हो सकते हैं. मसलन हमारे पास हो सकते हैं आइसोप्रोपाइल, हमारे पास होगा आइसोब्यूटाइल, हमारे पास होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल, वी हैव टर्शियरी ब्यूटाइल, वी हैव नियोपेंटाइल. अगर हम लेंगे प्रोपाइल और ब्यूटाइल ग्रुप्स की एग्जांपल. सो दिस वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ nomenclature of organic compounds, how we can assign IUPAC names to simple saturated hydrocarbons, that means alkanes. Okay.